الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين یا رب العالمین. لے جی ثلاثی مزید بھی فعل امر غائب و متکلم، یعنی اس کے اندر متکلم بھی آئے گا اور فعل امر غائب بھی آئے گا. فعل امر غائب متکلم مضارع میں مندر جزیل تبدیلیاں کر کے بنایا جاتا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ شروع میں لام امر ہم لگاتے ہیں، مضارع سے پہلے لام امر لگائیں اور مضارع کو مجزوم کر دیں، بس یہ اس کا کام ہے. مضارع سے پہلے لام امر اور جو مضارع ہے اس کو مجزوم کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ بس یہی ہے اس کے اندر. دیکھیں لیفعل اصل میں کیا تھا؟ یفعلو. لام امر لگانے سے کیا ہوا؟ ایک تو فعل امر مجزوم ہو گیا، دوسرا یہ فعل امر غائب ہمارا تیار ہوا. لیفعل 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 پہلا سیغہ بنائیں گے تو پھر اس کے حساب سے اپنا تثنیہ بھی بنا سکتے ہیں اور جمع بھی بنا سکتے ہیں. لیفعل لیفعل لیفعلو لیف لتفعل. اب یہ مؤنث غائب کا سیغہ ہے. لتفعل لتفعل لیفعلنا، یہ ویسے کا ویسا آئے گا. دیکھیں یہ جو ہے یہ آپ ایسے سمجھیں مبنی اسماء میں سے، جیسے مبنی اسماء تھے نا ان کی جو ہے اعرابی حالت چینج نہیں ہوتی، تو یہ بھی اب یہ ہے جزم کی حالت میں، مجزوم ہے، لیکن لام لگنے کی وجہ سے، لام امر لگنے کی وجہ سے مجزوم تو ہے لیکن اس نے کوئی تبدیلی قبول نہیں کی ہے، یہ مجزوم اب لیفعلنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آپ دیکھیں یہ 6 سیغے، وہ والے 6 سیغے ہیں جو غائب کے سیغے. جو حاضر کا سیغہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں یفعلو تھا نا، تفعلو بن جائے گا. ٹھیک ہے، تفعلو تو افعل یفعلو، افعل یفعلو، یفعلو کی بجائے یفعلو ہے اصل میں، افعل یفعلو. ٹھیک ہے، تو وہ درمیان میں جو ہے حمزہ جو اصلی ہے وہ ہم نے گرایا کیوں تھا؟ کہ وہ درمیان میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا. اس وجہ سے وہ، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ یہ سٹار کے نشان لگا دیے. یہ اب میں آپ کو یہ والے سیغے دکھاتا ہوں، یہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ والے، یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں پیچھے کر کے. دیکھیں تفتعلو، افتعلو. اپنا تفتعلو کا ہم نے کیا کیا؟ علامت مضارع ہٹا دی، تو پھر یہ الف رہ گیا، اور پھر ہم نے آگے اس کے جو ہے اس کے اوپر حرکت لگائی. کیسے لگائی؟ عین کلمے کو دیکھا، عین کلمے کے اوپر زبر یا زیر ہو تو حمزہ وصلی کے نیچے زیر آتی ہے، تو اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہو تو حمزہ وصلی کے اوپر پیش آتی ہے. افتعیل بن گیا. اچھا، سب سے جو آخری سیغہ تھا نا، وہ جو سیغہ ہمارے پاس پڑا ہے، دیکھیں تو افعلو، تو افعلو، اس کا ماضی کا سیغہ کیا تھا؟ افعل، افعل یفعل. جو ہم نے درمیان میں حمزہ کو اس لیے گرا دیا تھا کہ یہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے، افعل یفعل کی بجائے افعل یفعل بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں اس کا جو حمزہ ہے نا اس کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ہم علامت مضارع ہٹاتے ہیں تو پھر اگلا حرف اگر ساکن ہو تو اس سے پہلے ہمیں حمزہ وصلی لگانا پڑتا ہے مجبوراً. تو جب اس کا اپنا حمزہ ہے تو پھر ہمیں حمزہ وصلی لگانے کی ضرورت
नहीं है, इस वजह से हम उसका अपना ले आए हैं। इस वजह से पूरा ये आपके सामने सीगा रखा गया है, अफ़अला युअफ़इलु युअफ़इलानी युअफ़इलूना तुअफ़इलु तुअफ़इलानी युअफ़इलना, फिर क्या है तुअफ़इल। अब ये असल किरदार पूरी जब हम ले आए हैं, दरमियान में जो रुकावट थी वो भी साथ ले आए हैं, तो वही रुकावट अब हमें फायदा दे रही है फेले अमर बनाने के दौरान। तो फेले अमर बनाने का पहला काम क्या है, हम अलामत मुजारे हटा देंगे। दूसरा काम क्या होगा, अगर अलामत मुजारे हटाने के बाद वाला हर्फ मुतहर्रिक है, जैसे ये हमजा देखिए जबर वाला है, तो फिर हमें और हमजा वसली लगाने की जरूरत नहीं है, फिर बस हम आखिरी जो स्टेप है वो करेंगे, यानी लाम को मजजूम, लाम कलमे को मजजूम करेंगे। तो लाम को मजजूम करेंगे तो ये बन गया अफ़इल। अब इसी का जो है अफ़इल ये गिरदान हम वहां पे पढ़ सकते हैं। देखें मैं आपके सामने रखता हूं, देखें यहाँ पे अफ़इल, अफ़इला, अफ़इलू, अफ़इलत, अफ़इलता, अफ़इलना। ठीक है जी, क्योंकि ये तो डायरेक्ट है ना, ये तो फेले अमर हाजिर के लिए है। अच्छा जी, ली उफ़इल, ताक मुझे चाहिए कि मैं करूं, ली नुफ़इल हमें चाहिए कि हम करें। ये दो के लिए भी आ जाएगा, जमा के लिए भी आ जाएगा, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए ये ये वाला सीगा आएगा। अच्छा, लामे अमर लगाते हैं तो क्या होता है, लाम कलिमा मजसूम हो जाता है और हुक्मिया बात इसके अंदर आ जाती है। ठीक हो गया। हाँ जी, किसी का कोई अभी कोई सवाल हो तो बताएं, यानी बात अगर कोई समझ ना आई हो तो बताएं, नहीं तो हम आगे चलेंगे। चलो मेरे ख्याल में माशाल्लाह सबको लगता है समझ आ गया है, आगे चलते हैं जी। सुलासी मजीद फी के अंदर फेल माजी मजहूल बनाने का तरीका। अब फेले माजी मजहूल बनाने का तरीका, पहले हमने क्या बनाया था, पहले फेले माजी मजहूल और मुजारे मजहूल भी हम बना चुके हैं, कहाँ पे, सादा जो सुलासी मुजर्रद के अंदर। अब सुलासी मजीद फी के अंदर हम हैं, तो हम मजहूल बनाने लगे हैं। तो क्या है देखें, सुलासी मजीद में माजी मजहूल सुलासी मुजर्रद के माजी मजहूल के वजन फुइला को बुनियाद बनाकर बनाया जाता है। तो देखिए इला लगाएंगे, इला, इला पहला कलिमा मज़मूम कर दे, आइन और लाम कलिमे को इला में कोई तब्दीली ना करें। देखें, सीगे में साकिन को बरकरार रखें, हरकत फतहा को गम्मा में बदल दें। ये भी हम कर देते हैं इंशाअल्लाह। जिन सीगों में फा और आइन कलमे के दरमियान अलिफ हो उसे वाव से बदल दें। अब ये मैं आपके सामने मिसालें रखूंगा तो फिर आपके लिए बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। दोबारा सुने, सुलासी मजीद में माजी मजहूल सुलासी मुजर्रद के माजी मजहूल को के वजन फुइला को बुनियाद बनाकर बनाया जाता है। अब वो बुनियाद क्या होगी, ये आइला बस हम वहीं से पकड़ेंगे, बाकी हम नहीं पकड़ेंगे। तो उसमें क्या होगा, पहला कलिमा जो पहला हर्फ है जो फा कलिमा है उसको मजमूम करेंगे, आइन और लाम कलिमे इला में कोई तब्दीली ना करें, सीगे में साकिन को बरकरार रखें, हरकत फतहा को गम्मा में बदल दें। जिन सीगों में फा और आइन कलिमे के दरमियान अलिफ हो उसे वाव से बदल दें। जैसे अब आप देखें, अफ़अला है ना, अफ़अला यु अफ़इलु, तो हम क्या करेंगे, आई अपना जो पहला पहला हर्फ है उसके ऊपर हम पेश लगा देंगे बस, उफ आइला, उफ आइला, ये माजी का मजहूल तैयार हो रहा है, पहले हर्फ पर हमने बस पेश लगानी है, तो ये क्या बन जाएगा, उफ आइला। आइला आखिर में लगाना है, शुरू में उफ करना है। देखें
तफाउल तफाअलु अपना तफाअला का क्या करना है, आखिरी दो हरूफ को इला कर देना है और शुरू वाले को मजमूम कर देना है। तुफाइला। अच्छा, तुफाइला, तुफाइला जब हम करेंगे तो तुफाइला जो है यहाँ पे अ, दरमियान में जो अलिफ है उसको हमने वाव से बदल देना है। दोबारा देख लेते हैं। सीगे में साकिन को बरकरार रखें, ये जो अलिफ है इसको हम साकिन के तौर पर बरकरार रखेंगे और फतह को ज़म्मा में बदल दें। तो जो फतह है उससे पहले उसको ज़म्मा में बदल देंगे। तो देखें, ये जो अलिफ है ना उसको हमने वाव से बदल दिया तो ये बन गया तुफूइला। ले जी, इस तफाला का क्या करेंगे, इस तफाला का, इसमें आपने बस ये देखना है कि इला को छोड़कर पीछे, आप जरा जहन में रखें दोबारा, इला को छोड़कर पीछे सारे जम्मा कर देने हैं, जो साकिन नहीं है उसके अलावा सबको, सब पर पेश लगा देनी है। ये चीज जहन में रखें बस। देखें, सीन साकिन है इसको छोड़ देंगे, फा साकिन है इसको भी छोड़ देंगे, ता के ऊपर जबर है इसको भी, इसको भी ऊपर भी जम्मा लगा देंगे, उससे पहले हमजा के नीचे देखें जेर है इसके ऊपर भी जम्मा लगा देंगे। तो ये बन जाएगा उस तुफ इला, उस तुफ इला। ठीक हो गया। यहां पे भी देखें, तू फू तूफा इला। अच्छा, जब ये तफाअला, तफाअला है तो आखिरी हर्फ को हमने इला करना है और उससे पहले जो हरकत वाले हरूफ हैं उनको हमने क्या करना है, जम्मा लगानी है। अब इस पर जब जम्मा लगी है ना फा के ऊपर, तो उसके बाद अलिफ पढ़ा नहीं जा रहा, उसकी मजबूरी की वजह से कि ये पढ़ा नहीं जा रहा, उसको हमने वाव से इस वजह से बदला था। जबकि अलिफ देखे ना खाली है, अगर वाव आएगी तो वो भी खाली होगी, यानी सुकून की उस पर अलामत हम लगा देंगे। अगर अलिफ के ऊपर हम सुकून की अलामत लगाते तो ये हमजा बन जाता है, इस वजह से इसके ऊपर तो सुकून की अलामत नहीं बनती। लेकिन कोई भी हर्फ जो खाली होता है वो साकिन होता है। अलिफ के अलावा कोई भी हर्फ अगर खाली होगा तो वो साकिन कहलाएगा। तो यहाँ पे जो है तुफू इला बन गया। आखिरी दो हर्फ इला पर मुश्तमिल होंगे। कोई भी आप माजी का जो है फेल उठाएं और उसको जब आप मजहूल बनाने लगे तो आप आखिरी दो हरूफ को इला कर दें और उससे पहले जो भी हरूफ मुतहर्रिक हैं जिनके ऊपर जबर जेर पेश है उनको उन पर पेश लगा दें, गम्मा लगा दें। ठीक है क्या। तो यहाँ पे जब हमने फा के ऊपर पेश लगाई तो उसके बाद तूफा, तुफुआ इला नहीं पढ़ा जा रहा ना, तो इस वजह से फा की हरकत के मुवाफिक आगे जो हर्फ उसको उसके मुताबिक है वो हमने वाव में बदल दिया। तो अब आप देखिए तुफु इला पढ़ना हमारे लिए आसान हो गया। तो ये फेले मजहूल आपका तैयार है, ये भी फेले मजहूल तैयार है और ये भी फेले मजहूल तैयार है। अब हम आगे चलते हैं। देखें, अब 8 के 8 जो हमने अब्वाब पढ़े थे ना वो सारे के सारे आपके सामने आ गए। अफ़अला, फ़अला, फ़अला, तफ़अला, तफ़ाअला, इफ़्तअला, इन्फ़अला, इस्तफ़अला। हमने करना क्या है, आखिर वाले को इला कर देना और उससे पहले जो भी हर्फ है उस पर हमने पेश लगा देनी है। उफ़इला, फ़ुइला। अच्छा जी, अब देखें, फ़ाअलु, फ़अला। अब इला आखिर में जब करेंगे तो फुआ इला नहीं पढ़ा जाएगा, इसको भी वाव से बदलेंगे, फू इला बन जाएगा, फू इला। अच्छा, इसी तरह तफ़अला को आखिर में ऐन के नीचे जेर लगाकर इला कर देंगे और उससे पहले दो हरूफ हैं दोनों के ऊपर जो है पेश लगा देंगे, गम्मा लगा देंगे, तो ये बन जाएगा तुफु, तुफु इला, तुफु इला।
इसी तरह तफाअला, देखे यहाँ पे भी क्या होगा, ये बाद में अलिफ है ना, आखिरी दो हरूफ को इला कर देंगे और उससे पहले अलिफ है, अलिफ से पहले देखें दो हरूफ हैं जिनके ऊपर पेश लगाएंगे, तो ये तू फुआ आइला नहीं पढ़ा जाएगा, तो इस अलिफ को वाव से हमें बदलना होगा, तो ये बन जाएगा तुफू आइला। इसी तरह इफ्ताला, यहाँ पे इला करेंगे इसको और पीछे जो साकिन हर्फ है उसको छोड़ देंगे, ता के ऊपर जबर है, इसको इसको भी मजमूम कर देंगे, हमजा के नीचे जेर है इसको भी मजमूम कर देंगे, उफ तो इला बन जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह इन फ़अला, यहाँ पे इला करके फा को भी मजमूम कर देंगे और हमजा को भी मजमूम कर देंगे, तो ये बन जाएगा उन फुइला। अच्छा, वैसे ये जो बाबे इनफिआल है ना, इससे माजी मजहूल बनता नहीं है, लेकिन हम अगर बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनेगा उन फुइला। अच्छा, इस्तफअला से उस्तुफइला। अच्छा जी, फेले मुजारे मजहूल बनाने का तरीका वो क्या है जी, वो देख लेते हैं, बल्कि उसको दोबारा सुन लें। आप जहन में रखें कि फेले माजी मारूफ को अगर माजी मजहूल बनाना हो तो आखिरी दो हर्फ को जो है आप इला कर दें, उससे पहले जो भी हर्फ मुतहर्रिक हो उसके ऊपर पेश लगा दें, यानी जो भी हर्फ आखिरी दो हरूफ यानी ऐन और लाम कलमे को छोड़कर पहले जो भी हर्फ आए और वो साकिन ना हो, मुतहर्रिक हो, तो उस पर पेश लगा दें बस। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे अलिफ से पहले भी पेश आपने लगाई, तो अलिफ पढ़ा नहीं जाता, तो अलिफ को पेश के मुवाफिक हर्फ से बदल देंगे। अगर उससे पहले पेश की जगह पे जेर होती तो फिर हम उसको या से बदलते हैं, साफ सारे हमने तो पेश लगाई है ना, कायदा जो है, तो फिर उसके मुताबिक जो हर्फ है वाओ उससे हमने इसको बदल दिया। अब आपके सामने आ गया कि आखिरी दो हरूफ को इला कर देना है और उससे पहले वाला जो हर्फ है यानी कोई भी साकिन हर्फ है उसको छोड़कर जो मुतहर्रिक हर्फ है उसको उसके ऊपर हमने वम्मा लगा देनी है। सुलासी मजीद फी, फेले मुजारे मजहूल बनाने का तरीका। अच्छा जी, सुलासी मजीद में मुजारे मजहूल सुलासी मुजर्रद के मुजारे मजहूल के वजन युफ़अलु, अब इसको आपने आलू करना है, को बुनियाद बनाकर बनाया। ये जो हम आलू खाते हैं वो वाला नहीं, ये आइन वाला आलू है, आलू युफ़अलु। ठीक है जी। अलामत मुजारे को मजमूम कर दे, आइन और लाम कलमे आलू में कोई तब्दीली ना करें, बस ये करनी है। और क्या करना है, बाकी तमाम हरूफ में कोई तब्दीली नहीं करनी किसी किस्म की, अलामत मुजारे को बस आपने पेश लगाना। जैसे देखें युफ़इलु को हमने युफ़अलु करना है, ये तो पहले से क्योंकि पेश है ना, इसके ऊपर वम्मा है अलामत मुजारे के ऊपर, तो हमें और वम्मा हम क्या करेंगे, इसको बेशक हटा के फिर वम्मा लगा दें। युफ़अलु, आइन कलमे के ऊपर जबर लगानी होगी बस। युफ़अलु, ये हमारा मुजारे मजहूल तैयार है। इसी तरह देखें क्या होगा, युता फ़अलु, अब यहाँ पे आइन के ऊपर पहले से यानी आखिरी दो हरूफ जो हैं ये आलू पर वैसे मुश्तमिल है, तो हमने क्या करना है, मुजारे को मजमूम करना है, इस पर वम्मा लगानी है, तो ये बन जाएगा युतफ़अलु। ठीक हो गया। तीसरा देखें यस्तफ़इलु, यहाँ पे भी युस्तफ़अलु, यानी शुरू में वो मुजारे अलामत मुजारे पर वम्मा लगाएंगे और आइन कलमे के ऊपर जबर लगाएंगे, लाम कलमे के ऊपर अमूमी तौर पर वैसे पेश होता है। देखिए युस्तफ़अलु, फेले मुजारे मारूफ से फेले मुजारे मजहूल, ये आपके सामने पूरे सारे सीगे आ रहे हैं।
देखें युफ़इलु मुज़ारे मारूफ, ये देखें युफ़इलु युफ़इलु युफ़ाइलु यतफ़अलु यतफ़अलु यफ़्तइलु यनफ़इलु यस्तफ़इलु युफ़अलु। असल में ये ज़म्मा फतहा कसरा लगाना मुश्किल है, नहीं तो अब आप लोगों से लिखवाता तो आपके लिए भी आसान हो जाता जहन नशीन करना। अच्छा जी, देखें युफ़अइलु को हम क्या कर देंगे, आइन कलमे के ऊपर बस जबर लगाएंगे, क्योंकि अलामत मुजारे के ऊपर पहले से पेश है। ये जो पहले तीन सीखे हैं ना, उनकी अलामत मुजारे पर पहले से पेश मौजूद है। बाकी जो देखे सारे सीखे हैं, सबके ऊपर जबर है अलामत मुजारे पर। अच्छा अब आप देखें लाम कलमे पर सारी पेश है, वम्मा है, देखें सारे के सारे पेश वाले हैं। आपने बस क्या करना है, आइन कलमे के ऊपर जबर लगानी है। आइन कलमे के ऊपर जबर लगानी है, अगर कहीं पे जबर है तो ठीक है। देखिए आइन के ऊपर जबर है, यहाँ पे भी जबर है, दो जगहों पे पहले से जबर है, तो आपको मसला नहीं है। आपने क्या करना है, शुरू में अलामत मुजारे के ऊपर वम्मा लगानी है, यानी पेश लगानी है। देखिएगा अब युफ़अलु युफ़अलु युतफ़अलु युतफ़अलु युफ़्तअलु। और फिर ये मैंने आपको बताया था ना कि बाबे इन्फिआल में से नहीं बनता, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो क्या बनेगा, मैं आपको यहाँ से बना के दिखाता हूँ। युनफ़अलु युनफ़अलु, आइन के ऊपर जबर आ जाएगी, युनफ़अलु। अच्छा जी युस्तफ़अलु युस्तफ़अलु, ठीक हो गया। ये अब आपको अंदाजा हो गया कि माजी मजहूल कैसे बनाते हैं सुलासी मजीद फी के अंदर, और मुजारे मजहूल कैसे बनाते हैं सुलासी मजीद फी के अंदर। ले जी, अभी तक अगर आपके जहन में कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज मैं समझता हूँ हमारा सबक काफी सारा हो गया है, लेकिन टाइम हमारे पास अभी रहता है। तो आप में से अगर कोई किसी का सवाल हो तो वो मैं देख लूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। वो सवाल पूछिएगा जो इस सबक से मुताल्लिक हो, इधर उधर की हो सकता है बात मुझे समझ भी ना आए। चले जी, मेरे ख्याल में सबको सारी चीजें समझ आ गई है। इस्मुल फाइल, अब ये अगला मामला शुरू हो रहा है। ये बहुत अहम चीजें अब आ रही हैं। इस्मुल फाइल होता है एक, और एक होता है इस्मुल मफऊल। फिर हम इस्मुल सिफा पढ़ेंगे, जो तीसरा हिस्सा है ना, आप ऐसा समझे यहीं से ही शुरू हो रहा है, तो वो तीसरा हिस्सा भी आगे शुरू हो जाएगा। एक इस्मुल फाइल है, फिर इस्मुल मफऊल होता है, फिर इस्मुल सिफा होता है। इस तरह जो है मुख्तलिफ अस्मा हैं जो कि वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। छह भी अस्मा कहलाते हैं और आठ भी कहलाते हैं। छह किस्में हैं अस्मा की, या आठ किस्में हैं, वो हम सारी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये तीसरा हिस्सा उसमें शामिल है ऐसे। देखें इस्मुल फाइल, काम को करने का मफहूम देने वाला। इस्मुल फाइल जैसे सालिहुन, अब इसका मतलब क्या होगा, नेकी करने वाला, इसका मफहूम होगा सालिहुन। तो इसको हम अमूमी तौर पर मस्दर के तौर पर मानते हैं ना, तो यहाँ पे ये इस्मुल फाइल के तौर पर आया है, सालिहुन नेकी करने वाला। इसी तरह फाइलुन, देखे फाइलुन काम करने वाला। अच्छा, नेकी करने वाला आ गया ना, फाइलुन। और नेक जो है सिफ्त है। मुजतहिदुन मेहनत करने वाला। मुफ्ताइलुन, देखे मुफ्ताइलुन मुजतहिदुन के वजन पर है मुफ्ताइल। मुजतहिदुन मेहनत करने वाला, मेहनती है। और फिर क्या है, ये सिफ्त के तौर पर है, यानी सिफ्त भी ये बन सकता है। इसी तरह इस्मुल फाइल बनाने का
तरीका सुलासी मुजर्रद के अंदर क्या है? फाइलुन के वजन पर तालिबुन, तालिबुन फाइलुन का वजन आप जहन में बिठा लें सुलासी मुजर्रद के अंदर। फाइलुन, फाइलुन का मतलब करने वाला। सालिहुन, फाइलुन, मुजतहिदुन, मुफ्ताइलुन। इसी तरह इसकी हम गर्दान भी कर सकते हैं, फाइलुन, फाइलन, फाइलिन, और फिर फाइलानी, फाइलैनी, फाइलैनी, फाइलूना, फाइलीना, फाइलीना। ठीक है जी। अब देखें, फाइलतुन, फाइलतन और फाइलतिन, ये मुअन्नस आ गई। ये फाइलुन मुज़क्कर थी, हो गया, और फाइलतुन मुअन्नस हो गई। अब इसकी रफा की हालत फाइलतुन, फाइलतन, फाइलतिन, यानी नसब की हालत में फाइलतन और जर की हालत में फाइलतिन। फाइला तानी, आनी की आवाज आएगी तस्निया में, और नसब और जर की हालत में फाइलतैनी, फाइलतैनी, फाइलातुन, फाइलातिन, फाइलातिन। देखें, जैसे हम पढ़ते थे ना, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, यानी जो जर की हालत है जमा मुअन्नस की, वो नसब की हालत भी एक जैसी है और जर की हालत भी एक जैसी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इस्मुल फाइल बनाने का तरीका सुलासी मजीद फी के अंदर, अलामत मुजारे हटाकर मीम के ऊपर पेश लगा देंगे। देखें, आइन कलमे को कसरा देंगे। अब मजीद फी के अंदर आ रहा है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। पहले तो सुलासी मुजर्रद देखा है ना हमने, उसके अंदर एक वजन है फाइल का बस, और कुछ लफ्ज ऐसे भी हैं जो हमने मुजतहिदुन पढ़ा है इस तरह के। अच्छा, पहला क्या है? अलामत मुजारे को हटाकर मीम पेश वाली हमने लगानी है। अलामत मुजारे को हटाकर मीम पेश वाली लगानी है, और कसरा, आइन कलमे को कसरा देनी है, लाम कलमे पर तनवीन लगा देनी है। तो ये बन जाएगा इस्मुल फाइल। देखें, युफ़इलु को हम क्या करेंगे, ये अलामत मुजारे को हटाएंगे और इस जगह पर मीम पेश वाली लगाएंगे, मुफ, और फिर क्या करेंगे, आइन कलिमा को कसरा देंगे जो कि पहले से इसके नीचे मौजूद है, और फिर आखिरी काम क्या करेंगे, लाम कलिमे पर तनवीन लगा देंगे। तो ये बन जाएगा मुफ़इलुन, मुफ़इलुन। देखिए यहाँ पे भी जेर है, लेकिन हमने काट कर फिर लगाई जेर, क्योंकि कायदा यही है ना, यानी जेर काटी है फिर जेर लगाई है, अगर जबर होती तो फिर काट के जेर लगा। मुफ़इलुन, ये है हमारा इस्मुल फाइल सुलासी मजीद फी के अंदर। सुलासी मुजर्रद के अंदर फाइलुन के वजन पर था इस्मुल फाइल। अब यहाँ पे ये इस्मुल फाइल वो है, इस्मुल फाइल वो होता है जो काम करने का मफहूम उसके अंदर पाया जाए। तो ये मुफ़इलुन जो है यहाँ पे, ये इस्मुल फाइल के तौर पर है। अब आप और चीज देखिए, युफ़इलु को हम कैसे बनाएंगे, अलामत मुतारे हटाएंगे और आइन कलमे के नीचे कसरा देंगे यानी जेर लगाएंगे, और लाम कलमे के ऊपर तनवीन लगा देंगे, तो ये बन गया मुफ़इलुन। इसी तरह युफ़इलु का क्या करेंगे, अलामत मुजारे के ऊपर पेश वाली मीम लगा देंगे, और आइन कलमे के नीचे पहले से जेर है और लाम कलमे को पर तनवीन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा मुफ़इलुन। उसके बाद देखते हैं यतफ़अलु, यतफ़अलु, ये आपको सारे मुजारे की अलामात मिल रही है। देखिए, मुजारे के पहले सीगे आपको सारे मिल रहे हैं, मुजारे का के सारे पहले पहले सीगे, फ़अल युफ़अलु और अफ़अल युफ़इलु। यु अफ़इलु था असल में, ये याद करिएगा,
युफइलु, तो वो रुकावट हमने दूर की, हमजा असली को गिरा दिया। युफइलु, युफइलु, फअला युफइलु, फअला युफअलु, ठीक है, फअला युफइलु। और तफअला यतफअलु, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए यतफअलु, अलामत मुजारे हटा देंगे और उस पर मीम पेश वाली लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मुतफअलु। देखें आइन कलमे के नीचे अब हम जेर लगाएंगे, देखें यहाँ पे क्या है, मुतफअलु, हम आइन कलमे के नीचे जेर लगाएंगे और लाम कलमे के ऊपर तनवीन। देखें क्या बन गया, मुतफअलुन। फिर देखें यतफअलु, पहला काम हमारा क्या है, अलामत मुजारे के ऊपर मीम पेश वाली लगानी है। दूसरा, यानी ये लगा दी हमने मीम पेश वाली। दूसरा काम ये है कि आइन कलमे के नीचे जेर लगाएंगे, ये लग गई। और तीसरा काम क्या है, लाम कलमे के ऊपर वम्मा लगानी है, दो पेश लगानी है। तो ये बन गया हमारा मुतफाइलुन। इसको हम क्या कहेंगे, इस्मुल फाइल, ठीक हो गया। इसके बाद है जी यफ्ताइलु, यफ्ताइलु, अलामत मुजारे हटा देंगे और इस जगह पे मीम जो है लगा देंगे, कौन सी भला, मीम लगाएंगे पेश वाली, वम्मा वाली। तो ये मीम लग गई, मुफ्ताइनुन, ये आइन कलमे के नीचे पहले से जेर है तो वो उसी तरह लगेगी, मुफ्ताइनुन हो जाए, मुफ्ताइनु था तो लाम कलमे के ऊपर हम फिर वम्मा तैन लगा देंगे, यानी दो जम्मा लगा देंगे, तो ये बन जाएगा मुफ्ताइनुन। ये है हमारा इस्मुल फाइल। देखें यनफाइलु, यनफाइलु का हम क्या करेंगे, अलामत मुजारे हटाएंगे, उस पर मीम पेश वाली लगा देंगे, ये लग गई। उसके बाद आइन कलमे के नीचे देखेंगे पहले से जेर मौजूद है, हमें और जेर लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया। फिर आखिरी काम क्या करते होते हैं, लाम कलमे को उसके ऊपर तनवीन लगाते हैं, तो यहाँ पे तनवीन हमने लगा दी, यानी डबल जम्मा लगा दी, वम्मा तैन लगा दी, मुनफाइलुन। और आखिरी फेल है हमारा यस्तफइलु, अलामत मुजारे को हटा लेंगे, उस पर मीम पेश वाली लगा देंगे यानी वम्मा वाली, और आइन कलमे के नीचे जेर देकर आगे लाम कलमे को मुनव्वन कर देंगे यानी तनवीन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा मुस्तफइलुन। तो ये हमारे इस्मुल फाइल तैयार है सारे के सारे 8 अबवाब के। देखें मुफइलुन, मुफइलुन, मुफाइलुन, मुतफइलुन, मुतफाइलुन, मुफ्ताइलुन, मुनफाइलुन, मुस्तफइलुन। तो मेरे ख्याल में आज का हमारा काम काफी है, कल हम जो है ना इंशाअल्लाह इसकी एक दफा दोहराई करेंगे जो आज हमने पढ़ा है, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी खुश्क लग रही हैं, तो इनकी दोहराई करते हुए हम इस्मुल मफऊल पढ़ेंगे, ठीक है जी। आज हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।